Continuation of the lesson, page number 43. Last but fourth paragraph. Continuation of the lesson. Page number 43. Last but fourth paragraph. At the end of a week, they had lost all hope, and Louisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." कहने लगा कि हम इस नेकलेस को रिप्लेस करेंगे. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds. Chaplet means a string of diamond. A string of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. जो खो गया था वैसे एक नेकलेस दिखाई दी. It was valued at 40,000 francs. इसका कॉस्ट 40,000 francs. They could get it for 36,000. If they bargain about it, they will get it at a good price of 36,000. Louisel possessed 18,000 francs. Louisel के पास अब तो 18,000 francs बचा हुआ, which his father had left him. उनके पिताजी ने उसके लिए रख छोड़ा था. He borrowed the rest. बाकी उधार लिया. He made ruinous promises. Ruinous means causing ruin. रूइनस प्रोमिसेस मतलब विनाशकारी प्रॉमिस किया है. टुक मनी फ्रॉम Ahasuerus and the whole race of lenders. Ahasuerus means money lenders, and the whole race of lenders. जिससे जिसे उधार ले सकता था उससे भी ले लिया, मनी लेंडर से भी ले लिया. Then he went to get the new necklace. फिर उसको प्राप्त करने के लिए चले गया. Depositing on the merchant's counter 36,000 francs. वो मर्चेंट को जमा कर दिया. When Madame Louisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब वो वापस ले गए, उसकी दोस्त थोड़ा गुस्सा होकर कुछ अलग टोन में बात किया. अरे इतना लेट कर दिया, पहले देना था, मुझे काम पड़ गया था इसका. Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Louisel feared she would.
उसने उसको खोला ही नहीं। मैडम लोइसल ने सोचा अगर उसके सामने वो खोले तो उसको पता पड़े वो नहीं है। What would she think if she should perceive the substitution? अगर उसको ये पता चले, become aware of, perceive, जान ले कि सब्सटीट्यूशन ला के दिया है। सब्सटीट्यूशन मीन्स एक के बदले दूसरा, वो पहचान ले वो नहीं है। What should she say? वो क्या कहेगी? Would she take her for a robber? मुझे कोई चोर तो नहीं समझे। मैडम लोइसल now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely, heroically. चाहे कोई भी हो, bravely उसने अपना काम किया। It was necessary to pay this frightful debt. अब उधार लिया है, उसको चुकाना है। She would pay it. कर दूंगी। And they sent away the maid. Maid यानी नौकरानी। नौकरानी को मना किया। They changed their lodging. रहने का स्थान बदल दिया। They rented some rooms in an attic. वो किसी का घर में छत के ऊपर जो स्टोर रूम का जैसा जो रूम बनाते हैं उसी को किराए से ले लिया। Attic means space inside the roof of a building. ऐसा जगह ले लिया। She learned the odious work of kitchen. घृणित काम, किचन का गंदा काम पूरा सीख लिया। She washed the dishes. खुद ही बर्तन धोए। She washed the soiled linen. तेल भरे कपड़े धोए। Their clothes and dish clothes. खुद के कपड़े और डिश वाले कपड़े। Which she hung on the line to dry. छत पर सुखाने के लिए लाइन बांध रखा था तो उसी में सुखाने लगे। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. कचरा, refuse है नहीं, इधर का मतलब कचरा। ये खुद सुबह सुबह कचरा लेके जाते थे और पानी भर के लाते थे, बीच में रख के रास्ते में थोड़ा आराम करने के लिए। बाल्टी में पानी लेके आते समय में बीच में थोड़ा सपोर्ट चाहिए ना, तो इसलिए रखते हैं वैसे। एंड clothed like a woman of the people. Woman of the people means ordinary people. ऐसे कपड़े पहना। She went to the grocers. परचूनी वाले के पास गया। The butchers, मीट वाले के पास गया। And the furnitures, sorry, fruiterers, फल वाले के पास गए। With her basket on her arm, हाथ में बास्केट लटका के। Shopping, haggling to the last sou of her miserable money. Haggling means bargaining. To the last sou, फ्रेंच कोई नहीं, सौ ऑफ हर मिसरेबल मनी। थोड़ा बहुत पैसा इस तरह से वो बचा भी लिए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, पति भी एक्स्ट्रा टाइम काम किया। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी बुक वाला मर्चेंट के पास जाके किताबें जमा के एक्स्ट्रा पैसा कमाया। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौ से पेज, रात को किसी पेज का नकल उतार के दे दिया, उसमें भी उसको 5 सौ मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, इस तरह से 10 साल तक उसने मेहनत किया। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड आवर, 2 साल के अंदर पूरा कर चुका है। मैडम लुइसल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लुइसल बूढ़ी दिखने लगी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, बूढ़ी होने के साथ साथ उसका शरीर पूरा अट्टा कट्टा हो गया काम करते। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, कच्चा औरत जैसा,
कच्चा औरत मतलब यूं ही औरत जैसा दिखाई दिया। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, बाल तक सही से बनाए नहीं। हर स्कर्ट्स अवे, और आवरी, उसके स्कर्ट पूरा गंदा। हर हैंड्स रेड, काम करते करते हाथ जल लाल हो गए। शी स्पोक इन ए लाउड टोन एंड washed the floor with large pails of water. pail यानी बकेट, वो कमरे का पोछा लगाया। But sometimes when her husband was at his office, she would seat herself before the window and think of that evening party for the former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered, praised. जब अपना काम से फ्री होकर बैठते समय, पति ऑफिस में रहते तो वो कुछ देर बैठ के पुरानी बातें सोचते थे, उस बॉल के बारे में सोचते थे, वहाँ लोग किस तरह से उसके तारीफ करते थे, उसको देखते थे। हाउ डिड हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो सोचने लगी अगर नेकलेस नहीं खोया होता कितना मज़ेदार ज़िंदगी हो जाती। एंड हु नोस हाउ सिंगुलर इज लाइफ। कौन जाना है ज़िंदगी कब सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर मीन्स अनोखा। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कब बदलाव आता है कौन जाने। हाउ स्मॉल थिंग विल रूइन आवर सेव वन, कितने छोटा चीज़ हमें बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। वन संडे आज शी वॉज टॉकिंग ए वॉक इन द चाम्स एल्सीज to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक दिन उसने सोचा थोड़ा माइंड को आराम मिलने के लिए थोड़ा घूम के आए, इसलिए वो चाम सेल्सियस में चले गया। वहाँ पर दूर से एक लेडी नजर आई एक बच्चे के साथ। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, ये वही थी मैडम फॉरेस्टियर। स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी जवानी दिखाई दे रहे, सुंदर तो है ही सही, अट्रैक्टिव भी है। एंड मैडम लुइसल वॉज अफेक्टेड, अफेक्टेड मीन्स सैड, उसको देखते ही ये उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? एक तो पुरानी बात कुछ पूछे, या फिर वो इतना सुंदर दिख रहे ये तो इतना बिगड़ गए इसलिए चिढ़ जाती है। शुड शी स्पीक टू हर, वो मेरे से बात करे क्या, नाराज है या नहीं? यस सर्टनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्यों नहीं बोले? अब बोलेगी वो, क्योंकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उधार भी चुक गया। एंड शी वुड टेल हर ऑल, अब मैं जाके उससे बोल दूंगी। वाई नॉट, क्यों नहीं बोलूँ? शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, वो जाके सीधे उसको नमस्ते किया। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, उसकी दोस्त को पहचाना नहीं है। क्यों पहचाना नहीं है पता है ना? क्योंकि उसको इस तरह से कभी देखा नहीं और इस तरह कमज़ोर पड़ गई, बूढ़ी लगने लगी, चमक ख़त्म हो गई। बोल्ड की बात दूसरी बात। एंड वॉज astonished टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाई हिज कॉमन पर्सनेज। पर्सनेज मीन्स नेम। लेकिन वो सोचा जो पहचान की नहीं है, लेकिन मेरा नाम ऐसे क्यों बोला, जैनी करके क्यों बोला? इसका मतलब ये जानती है मुझे अच्छी तरह। शी स्टामर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। उसने बोला, मैडम आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे। नो आई एम मेटिल्डा लोइसल, नहीं नहीं नहीं, मैं तो वही है मेटिल्डा लोइसल। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment, वो चिल्लाई, ए माई पुअर मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, अरे तुम बदल कैसे गई इतनी, क्या हो गया तुम्हें? Yes, I have.
had some hard days since I saw you. हाँ यार, तुमसे जब से लास्ट बार मिला ना, तब से लेकर मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही है। एंड सम मिसरेबल वंस, बड़ी उदास की बात है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ, आपकी वजह से हुआ ये। बिकॉज ऑफ मी? हाउ इज दैट? मेरे वजह से? कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल? आपको याद है आपने मुझे एक नेकलेस उस बॉल में पहनने के लिए दी थी, उधार दी थी? लोन्ड यानी लेंट। यस, वेरी वेल, हाँ याद है। वेल आई लॉस्ट इट, अरे यार मुझे वो खो गया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न? है क्या बोल रही? आपने वापस ला के दिया ना। आई रिटर्न अनदर टू यू एक्जैक्टली लाइक दैट, मैं आपको ला के दिया तो वो ऐसे ही वाला दूसरा ही था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, उसका खर्च चुकाने के लिए हमें 10 साल मेहनत करना पड़ा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। आपको तो वैसे पता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत भयंकर बात है। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। अब सारे कर्ज चुका दिया, मैं अब खुश हूँ। मैडम फॉरेस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट, वो थोड़ी देर रुक गई। शी सेड, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन? आपके कहने का मतलब आपने मुझे वापस ला के दिया एक डायमंड नेकलेस? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वेर जस्ट लाइक। अच्छा, आपने पहचाना नहीं इसका मतलब? वो एसिटी से लग रहा है इसलिए, है ना? एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। वो हंसते हंसते बोला। फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स। आज शी रिप्लाइड, उसको जवाब देने से पहले उसने दोस्त के दोनों हाथ अपने हाथ में ले ली। ओ माई पुअर मेटिल्डा, माइन वेयर फॉल्ट्स। फॉल्ट्स मीन्स इधर का मतलब नकली, इमिटेशन। अरे बावड़ी, मैंने जो तुम्हें दिया था वो इमिटेशन था, नकली वाला था, ओरिजिनल डायमंड नहीं थे। दे वर नॉट वर्थ अवर 500 फ्रैंक्स। उसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 500 फ्रैंक्स, इससे ज़्यादा नहीं है। ये कहकर लेसन ख़त्म किया। वास्तव में लास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें सोचने को दिया। अब ये सोच सकता है कि वह क्या ये सुनने के बाद उसका मन बिगड़ के उसने इसका कोई मदद करे नहीं करे, या कुछ और बात कहे नहीं कहे, उसको किसी तरह का सपोर्ट करे न करे। ये सारी बातें हमें सोचने को छोड़ रखा है। सो थिंक द लेसन and try to understand the difficult word. No, difficult words are not there, so you can simply read it, simple language. Okay.